Hello students, in this session we will discuss the preparation of aldehydes, ketones and carboxylic acid all in the same video. That means we will take a particular compound and from that organic compound how can you prepare aldehyde, ketone as well as carboxylic acid. So you will be well able to compare between these three and it will be easier to learn the reactions. So let's start with the first one. From alcohols, see, aldehydes can be prepared from primary alcohols. You need primary alcohol for the preparation of aldehyde. Ketones can be prepared from 2-degree alcohols, secondary alcohols, and carboxylic acid are also prepared from 1-degree alcohols. Now I will write the reaction by using an example. Suppose aldehyde we are 1 degree alcohol we are taking, suppose CH3 CH2OH. हमने इथेनॉल लिया, ठीक है. What oxidize, it has to be oxidized to form aldehyde. एल्डिहाइड बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा अल्कोहल का. ऑक्सीडेशन किससे करते हैं, सो दैट द रिएक्शन स्टॉप्स एट द एल्डिहाइड स्टेज, वी कैन यूज PCC. Clear? Another method you can use, you can do the dehydrogenation reaction. It is a weak oxidizing agent. ये weak oxidizing agent है, ठीक है. You can use CrO3 anhydrous also. Another reaction you can do here is dehydrogenation reaction. Dehydrogenation होता है कॉपर की प्रेजेंस में एट 573 केल्विन. क्लियर? तो अगर इसी का डिहाइड्रोजनेशन करते हैं CH3 CH2OH कॉपर की प्रेजेंस में 573 केल्विन पे, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रिमूव होगा एंड यू विल गेट एल्डिहाइड अगेन. So you can get aldehyde from 1-degree alcohol by oxidation by weak oxidizing agent or dehydrogenation by copper at 573 Kelvin. Now ketones are prepared from 2-degree alcohol. We will take a 2-degree alcohol here, propane 2-ol. इसकी रिएक्शन एनहाइड्रस CrO3 से कराओ या PCC से कराओ, यू विल गेट CH3COCH3. यू विल गेट अ कीटोन. तो यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा और ये हाइड्रोजन रिमूव होगा. तो आइदर यू कैन राइट ऑक्सीडेशन और यू कैन राइट डिहाइड्रोजनेशन. तो कॉपर अगर यूज़ करेंगे 573 केल्विन पे, यू विल गेट द सेम प्रोडक्ट. क्लियर? So ketones are prepared from 2-degree alcohol by oxidation or by dehydrogenation with copper at 573 Kelvin. Carboxylic acid are prepared also from 1-degree alcohol, but what is the difference here? We have to use a strong oxidizing agent. So if we are using a strong oxidizing agent like K2Cr2O7 in acidic medium, KMnO4 in acidic or basic medium we can also use here HNO3, it will get Jones reagent, that is H2CrO4. You will get acid here CH3COH because all of these are strong oxidizing agents. Clear? So we have prepared aldehydes, ketones and carboxylic acid from alcohols. So it will be easier for you to compare and remember the reactions if you are writing the reactions in this way. Second is from acid chloride. Now from acid chloride also all the three can be prepared, aldehydes, ketones and carboxylic acid. Acid chloride is RCOCl. ठीक है. अगर हम इसका रिडक्शन करते हैं हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम सपोर्टेड ओवर BaSO4, द रोल ऑफ BaSO4 इज टू रिड्यूस द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ पैलेडियम. तो उसका कंप्लीट रिडक्शन नहीं होगा, इट विल नॉट बी कम्प्लीटली रिड्यूस टू अल्कोहल, द रिडक्शन विल स्टॉप एट एल्डिहाइडिक स्टेज. तो यहाँ से Cl रिमूव होगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा, यू विल गेट RCHO. You will get an aldehyde. This reaction is known as Rosenmund reduction. Clear? You can also reduce this acid chloride by using dibyl H. Now coming to ketones. Ketones can be prepared from acid chloride. Suppose we are taking here CH3COCl.
clear. By reaction with dialkyl cadmium means R2CD. We take dialkyl cadmium here. By reaction with dialkyl cadmium we will take 2 moles of molecules here. यहाँ से Cl रिमूव होगा और ये Cd रिमूव होगा. 2 Cl आर देयर, सो यू विल गेट प्लस CdCl2. ये रिमूव हो जाएगा और ये जो R है यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा. मीन्स द Cl ऑफ दिस कंपाउंड विल बी रिप्लेस्ड बाय R ग्रुप ऑफ डाइअल्काइल कैडमियम. तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3COR. क्लियर? I'll give another example. Suppose you have CH3COCl here and you are doing this reaction with C2H5 twice CD. ठीक है, इससे किस साथ कर रहे हैं तो ये क्या होगा? Cl को यहाँ से रिमूव करो, ये 2 मोल्स लो तो प्रोडक्ट बनेगा CH3CO और Cl रिप्लेस हो जाएगा C2H5 से. So the Cl group of acid chloride will be replaced by the alkyl group of the dialkyl cadmium and you will get a ketone here plus CdCl2. This is the reaction with for the preparation of ketones. Third is carboxylic acid. RCOCl है, उसका हाइड्रोलिसिस करते हैं H+ और OH- की प्रेजेंस में. अगर H+ की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस कर रहे हो यू विल गेट RCOOH. तो Cl रिमूव होके क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा. इफ़ यू आर डूइंग द हाइड्रोलिसिस इन बेसिक मीडियम तो तुम्हें मिलेगा सॉल्ट RCOO-. फिर उसे H+ के साथ ट्रीट करेंगे एसिडिक मीडियम में, यू विल गेट द एसिड RCOOH. तो बाय हाइड्रोलिसिस you can convert acid chloride into acid. Clear? Hydrolysis you can do for anhydrides. Anhydrides का भी अगर हाइड्रोलिसिस करोगे तो उससे भी कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेंगे. इफ़ यू आर डूइंग द हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर अगेन यू विल गेट द carboxylic acid. So by the hydrolysis of all these compound, acid chloride, acid anhydrides, esters, you will get carboxylic acids. ठीक है. हाइड्रोलिसिस कैन बी डन इन एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम. अगर एसिडिक मीडियम में करते हैं तो एसिड मिल जाएगा. अगर बेसिक मीडियम में करते हैं लाइक NaOH यू हैव टेकन तो यहाँ पे सोडियम सॉल्ट मिलेगा एंड देन व्हेन यू ट्रीट इट विद एसिडिक मीडियम H+ के साथ ट्रीट करेंगे यू विल गेट द एसिड. Third is from nitriles. From nitriles. Nitriles means you have a cyanide group here, RCN. Clear? Now all of these can be prepared from nitriles by different methods. First is from aldehyde. Aldehydes को prepare करने के लिए nitrile से क्या करते हैं? You have RC triple bond N. You will do the reduction by using SnCl2 plus HCl. देखो ये मिक्सचर क्या करेगा? फर्स्ट इट विल फॉर्म SnCl4 plus 2 हाइड्रोजन. These 2 hydrogen will be added here and one pi bond will be broken. You will get RCH double bond NH. You will get imines. इसका हाइड्रोलिसिस करोगे एसिडिक मीडियम में तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी और यहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा RCHO plus NH3. NH3 will combine with HCl, it will form NH4Cl. I am not telling the actual mechanism here, just a method to remember how the products are being formed. ब्रेक दिस बॉन्ड, एक तरफ ऑक्सीजन ऐड करो दूसरी तरफ हाइड्रोजन ऐड कर दो. ठीक है. सो दिस रिएक्शन इज नोन एज स्टीफन रिडक्शन. स्टीफन रिडक्शन. क्लियर? तो नाइट्राइल्स की रिएक्शन कराते हैं स्टेनस क्लोराइड प्लस HCl एंड देन हाइड्रोलिसिस यू विल गेट द एल्डिहाइड. Another method by which you can obtain aldehydes from nitriles is by using dibyl H. Dibyl H is a reducing agent. The full form is diisobutyl aluminium hydride. हाइड्राइड आयन डोनर है और उससे रिडक्शन जब करते हैं तब भी हमें एल्डिहाइड मिलता है. वी गेट RCHO एल्डिहाइड ग्रुप. Clear? So either you can use Stephan reduction or you can use dibyl H. You will be able to obtain aldehyde from nitriles. Yeah. Suppose you have
CH3 CH double bond CH CH2 CN एंड यू आर यूजिंग डाइबल H हेयर. तो ये डाइबल H क्या करेगा, डबल बॉन्ड को इफेक्ट नहीं करेगा. देर विल बी नो इफेक्ट ऑन द डबल बॉन्ड. इट विल ओनली रिड्यूस CN एंड इट विल फॉर्म उतने ही कार्बन का एल्डिहाइड मिल जाएगा. यू विल गेट द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द फाइनल प्रोडक्ट. ठीक है. सो फ्रॉम नाइट्राइल्स यू कैन प्रिपेयर एल्डिहाइड बाय स्टीफन रिडक्शन और बाय यूजिंग डाइबल H. सेकेंड नेक्स्ट इज कीटोन्स. कीटोन्स को प्रिपेयर करने के लिए वी डू द रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. सपोज आई एम टेकिंग हियर CH3 MgBr. क्लियर. ये रिएक्ट करेंगे. वी नो दैट मैग्नीशियम इज पॉजिटिव, रेयर इट इज नेगेटिव. CN में नाइट्रोजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा. ये कहाँ अटैक करेगा, नेगेटिव विल अटैक ऑन द पॉजिटिव पार्ट, पॉजिटिव ऑन द नेगेटिव पार्ट. यू विल गेट RCCH3. ये यहाँ पर अटैच हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा NMgBr. ऑन हाइड्रोलिसिस ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी, इधर O और इधर यहाँ पर H2 हो जाएगा. तो ये हो जाएगा RCOCH3. ठीक है. सो यू विल गेट कीटोन्स फ्रॉम नाइट्राइल्स बाय रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो एल्काइल पार्ट होगा वो कार्बन पे अटैक करेगा. ऑन हाइड्रोलिसिस दिस द पाई बॉन्ड विल बी ब्रोकन. यू विल गेट अ कीटोन हियर. क्लियर. एसिड्स को ऑब्टेन करने के लिए हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं. बाय हाइड्रोलिसिस पहले क्या होगा, H प्लस एसिडिक और बेसिक मीडियम में इसका हाइड्रोलिसिस होगा. यहाँ पे दो पाई बॉन्ड ब्रेक होगी, इधर O और इधर H2 ऐड कर दो. ठीक है. सो यू विल गेट RCONH2. अगेन आई एम टेलिंग दिस इज नॉट द एक्चुअल मैकेनिज्म बिकॉज वाटर विल नॉट स्प्लिट इन दिस वे. आई एम टेलिंग दिस ट्रिक टू रिमेंबर द रिएक्शन. तो ये पाई बॉन्ड जो है दोनों इन्हें ब्रेक करो, वन वाटर मॉलिक्यूल ऐड किया, ये बन गया RCONH2, अमाइड मिल गया. ठीक है. अमाइड ऑन फर्दर हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक और बेसिक मीडियम ये भी बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी, इधर OH और इधर H ऐड हो जाएगा. सो यू विल गेट RCOOH. यू विल गेट कार्बोक्सिलिक एसिड हियर. सो बाय पार्शियल हाइड्रोलिसिस अगर नाइट्राइल्स का कर रहे हो you will get amide. If you are doing the complete hydrolysis you will get the acid. Clear. तो अगर amide बनाना है तो उसके एरो के नीचे partial hydrolysis लिखते हैं. We will get amide. On further hydrolysis it will get the acid. So this is from nitrile you can prepare all the three. नाइट्राइल से बनाने के लिए स्टीफन रिडक्शन करते हैं एल्डिहाइड का, और डाइबल H के साथ रिएक्शन कराते हैं, कीटोन्स के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन, और एसिड बनाने के लिए नाइट्राइल्स का हाइड्रोलिसिस करते हैं. नेक्स्ट इज फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स. हाइड्रोकार्बन से हम सिर्फ बनाएंगे हाइड्रोकार्बन से बनाएंगे एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. डायरेक्टली वी विल नॉट मेक द एसिड्स हियर. So how the reaction is written? Hydrocarbon we will take alkene here. Suppose हमने alkene लिया CH2 double bond CH single bond CH3. ठीक है. इसका ओजोन लिसिस करते हैं. फर्स्ट है ओजोन लिसिस. ठीक है. ओजोन लिसिस करते हैं एंड देन बाय ट्रीटमेंट विद जिंक इन प्रेजेंस ऑफ वाटर. ठीक है. वी विल गेट फर्स्ट ओजोनाइड. पहले ओजोनाइड मिलेगा, फिर जिंक और वाटर के साथ क्या मिल जाएगा. हाउ विल यू रिमेंबर दिस रिएक्शन. ये डबल बॉन्ड को ब्रेक करो, दोनों तरफ एक एक ऑक्सीजन ऐड कर दो. तो CH2O क्या होता है, व्हाट इज CH2O, HCHO फॉर्मल्डिहाइड, और ये क्या बन गया CH3CHO. क्लियर. इफ यू आर टेकिंग CH3 डबल बॉन्ड CH2, अगर इसका ओजोन लिसिस करते हैं, ओजोन लिसिस एंड देन रिएक्शन विद जिंक एंड वाटर, व्हाट विल यू गेट. यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगी, एक तरफ दोनों तरफ ऑक्सीजन ऐड कर देंगे, CH3COCH3 प्लस HCHO. सो यू विल गेट दिस प्रोडक्ट इन दिस रिएक्शन. तो एल्कीन से बनाने के लिए
एल्कीन से दोनों प्रिपेयर हो जाएंगे, एसीटोन भी यहाँ पे कीटोन भी बन रहा है और यहाँ पे एल्डिहाइड बन रहे हैं. सो डिपेंडिंग अपॉन द ग्रुप विच आर प्रेजेंट ऑन द डबल बॉन्ड, क्या करेंगे, डबल बॉन्ड को ब्रेक करो, दोनों तरफ ऑक्सीजन ऐड कर दो, यू विल गेट मिक्सचर ऑफ 2 एल्डिहाइड्स 2 कीटोन्स और एल्डिहाइड एंड अ कीटोन. क्लियर. इसी में सेकंड तो कीटोन्स भी इसी मेथड से प्रिपेयर हो जाएंगे. इसी का सेकंड मेथड है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स फ्रॉम एल्काइंस. ठीक है. अगर एल्काइन से प्रिपेयर कर रहे हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इथाइन विल गिव इथेनल मीन्स एल्डिहाइड, बट ऑल अदर एल्काइंस विल गिव यू कीटोन्स. ठीक है. व्हाट इज द मेथड हियर, ये इथाइन है, we do the reaction with water means hydration of alkynes in presence of sulfuric acid and mercuric sulfate. क्लियर. फर्स्ट क्या होगा, वाटर का एडिशन होगा H प्लस एंड OH माइनस. यहाँ पे सपोज H ऐड किया, डबल बॉन्ड CH OH. यहाँ पे दोनों सिमिलर ग्रुप्स हैं तो H और OH किसी भी कार्बन पे ऐड कर सकते हैं. नाउ टॉटोमेरिस विल टेक प्लेस हियर. ये पाई बॉन्ड यहाँ आएगी और ये हाइड्रोजन इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा. सो यू विल गेट CH3 सिंगल बॉन्ड CH एंड देयर इज अ डबल बॉन्ड O. तो यू हैव गॉट एल्डिहाइड हियर. क्लियर. नाउ वी विल टेक अनदर एल्काइन हियर. सपोज CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH. इसमें वाटर ऐड करेंगे. H प्लस मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड एंड मर्क्यूरिक सल्फेट आयंस मीन्स मर्क्यूरस आयंस. ठीक है. इस तरह भी लिखा हो सकता है और यू कैन राइट इन दिस वे. यहाँ पे क्या होगा, H प्लस और OH माइनस आयंस. अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल नेगेटिव आयंस ऐड टू द कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स. तो यहाँ पे OH जाएंगे तो प्रोडक्ट मिलेगा CH3COH. ये डबल बॉन्ड हो जाएगा CH और यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा. क्लियर. नाउ व्हाट विल बी देयर विल बी शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड. तो ये पाई बॉन्ड यहाँ आएगी और ये हाइड्रोजन यहाँ पे जाएगा. ठीक है. तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड. ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गई, यहाँ सिंगल बॉन्ड हो गई एंड दिस हाइड्रोजन है शिफ्टेड हेयर. टोटल 3 हाइड्रोजन. You have got a ketone. You take any alkyne, any other alkyne, you will always get a ketone except ethine which gives ethanol. That means aldehyde. तो aldehyde सिर्फ मिलता है इथाइन के हाइड्रोलिसिस से, हाइड्रेशन से. From all other alkynes you get the ketone. So by acids cannot be prepared by from these alkenes and alkynes directly. So only aldehydes and ketones can be prepared. So this is fourth method from hydrocarbons. Now we will discuss the preparation of aromatic aldehydes, ketones and acids. Aldehydes, ketones and carboxylic acid. That means aromatic aldehydes, ketones and carboxylic acids can be prepared from aromatic hydrocarbons using different reagents. What are these reagents? Suppose you have to prepare aromatic aldehyde. तो aromatic aldehyde prepare करने के लिए हम क्या लेते हैं, we take toluene. ठीक है, this is toluene. Now this is an important reaction. इसकी रिएक्शन कराते हैं CrO2Cl2 in presence of carbon disulfide means non-polar solvent. तो क्या होगा, देखो यहाँ पर इस कार्बन पर है CH, 3 हाइड्रोजन्स आर देयर, वी हैव रिटन इन दिस वे. ठीक है. तो एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन, इसके 2 मोल्स रिएक्ट करेंगे. एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाएगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में, और दूसरा ऑक्सीजन इस कार्बन से बॉन्ड बना लेगा. क्लियर. तो यू विल गेट एन इंटरमीडिएट हियर CH, दैट इज अ CH हियर. ये जो 2 हाइड्रोजन है ये बनाएगा OCrOH Cl2 OCrOH Cl2. You will get this intermediate complex. क्लियर. यहाँ पे क्या हुआ, मिथाइल ग्रुप पे 3 हाइड्रोजन्स आर देयर. दीज 2 हाइड्रोजन विल कंबाइन विद 1 ऑक्सीजन ऑफ दिस. मतलब ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा, OH में कन्वर्ट हो गया और एक जो ऑक्सीजन बचा वो इसके साथ बॉन्ड बना लेगा. लाइक दिस यू कैन राइट हियर. ये है Cr
डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। तो एक तो इसके साथ कंबाइन हो जाएगा OH और दूसरा ऑक्सीजन यहाँ से बॉन्ड बना लेगा। क्लियर। इसी तरह दूसरा मॉलिक्यूल जो होगा वो भी यही करेगा, एक तो इसके साथ कंबाइन होगा और दूसरा कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा। क्लियर। सो यू विल गेट दिस कॉम्प्लेक्स। नाउ दिस कॉम्प्लेक्स ऑन हाइड्रोलिसिस, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगी और हाइड्रोलिसिस होने पे ये बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। सो यू विल गेट बेंजल्डिहाइड हियर। दिस रिएक्शन इज नोन एज इटार्ड रिएक्शन। Clear. So what is Itard reaction? Itard reaction is the oxidation of methyl group of toluene in presence of chromyl chloride and carbon disulfide and further hydrolysis to form benzaldehyde. This is the reaction. This is an important reaction to convert toluene directly into benzaldehyde. Another reaction you can prepare from benzene also. बेंजीन है, उसकी रिएक्शन कराओ कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl in presence of anhydrous AlCl3. क्लियर। सो सिमिलर टू फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, उसी टाइप की रिएक्शन होगी। इसमें ये दोनों रिएजेंट रिएक्ट करके एक इलेक्ट्रोफाइल क्रिएट करेंगे एंड इट विल प्रोड्यूस बेंजल्डिहाइड। दिस रिएक्शन इज नोन एज गैटरमैन-कोच रिएक्शन। गैटरमैन-कोच रिएक्शन। क्लियर। यू हैव टू रिमेंबर द नेम रिएक्शंस एज वेल। तो दो रिएक्शन हमने पढ़ ली फ्रॉम टॉल्यूइन। ये भी फ्रॉम टॉल्यूइन यू कैन प्रिपेयर बेंजल्डिहाइड बाय रिएक्शन विद क्रोमाइल क्लोराइड एंड CH2 and hydrolysis. Then from benzene you can prepare by reaction with carbon monoxide and HCl and in presence of anhydrous AlCl3. The CHO group will be added here. They will both react and they will create a electrophile here, CHO, and this will attack at the benzene ring. So you will get benzaldehyde here. You can also prepare benzaldehyde from toluene by reaction with Cl2. Suppose हमने reaction कराई light की presence में, तो replacement होगा इस हाइड्रोजन का, तो you will get. Now if you are using excess of Cl2, 2 हाइड्रोजन में भी रिप्लेस, पहले ये बनेगा CH2Cl, उसके बाद फर्दर ये रिएक्ट करेगा, ये बनाएगा CHCl2. क्लियर। अब इसका हाइड्रोलिसिस कर दो। इफ यू डू द हाइड्रोलिसिस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन प्लेस ऑफ 2Cl यू विल गेट 2OH ग्रुप। हाइड्रोलिसिस हुआ, 2OH group on the same carbon, it is unstable and it is easily loses water molecule. तो अगर दो OH सेम कार्बन पे है, वो हाईली अनस्टेबल होता है, वाटर लूज कर देता है और ये बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। सो देर आर मैनी मेथड्स टू प्रिपेयर एल्डिहाइड फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। क्लियर। कीटोन्स बनाने के लिए वी डू जस्ट द फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, CH3COCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, ये रिएक्शन कराते हैं और एंड यू गेट द फ्रीडल-क्राफ्ट प्रोडक्ट. सो दिस इज फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन. यू कैन प्रिपेयर कीटोन्स फ्रॉम बेंजीन. you'll get COCH3 है, यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा COCH3 ग्रुप से. ठीक है. नाउ कार्बोक्सिलिक एसिड कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम टॉल्यूइन. कैसे बना सकते हैं? Do the strong oxidation, means oxidation using KMnO4 in basic medium KOH. ठीक है. तो ये बनेगा, ये पार्ट ऑक्सीडाइज होके बना लेगा COOK. पोटेशियम सॉल्ट बनेगा बिकॉज यू हैव टेकन द बेसिक मीडियम. इसका एसिडिफिकेशन करोगे यू विल गेट एसिड. तो यू विल गेट बेंजोइक एसिड इन दिस रिएक्शन. नाउ व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ दिस रिएक्शन? इसमें कोई भी साइड चेन लो, whatever be the length of the side chain, you can take this chain. ठीक है. You can take CH डबल बॉन्ड CH2. इनमें से कुछ भी लोगे, उसका ऑक्सीडेशन करोगे KMnO4 KOH and then acidification, you will get the same product. Means whatever is the length of the side chain, you will get benzoic acid always. ठीक है. So this is very important reaction.
You have to do acidification to obtain the benzoic acid, but the carbon which is directly attached to the benzene ring must have alpha hydrogen. उसके पास हाइड्रोजन होना चाहिए. अगर उसके पास हाइड्रोजन है तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा. लाइक इफ यू आर टेकिंग दिस कंपाउंड CH CH3 CH3, ये ऑक्सीडाइज होके क्या दे देगा, बेंजोइक एसिड. तो कितनी भी लंबी चेन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, COH में. बट इट मस्ट हैव हाइड्रोजन अटैच टू इट. अगर ऐसा कोई कंपाउंड है, मीन्स यू हैव टर्ट ब्यूटाइल बेंजीन, इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो ये रिएक्शन नहीं देगा, इट विल नॉट गिव द रिएक्शन. ठीक है. सो दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स. अगर एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाना है, कीटोन बनाना है या बेंजोइक एसिड बनाना है तो वी कैन यूज टोलुइन और वी कैन यूज बेंजीन. और इन केस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड द साइड चेन में भी एनी maybe of any number of carbon atoms, it will give the same product, benzoic acid, provided it must have hydrogen attached to it. मीन्स जो कार्बन डायरेक्टली अटैच है उस पर हाइड्रोजन होना चाहिए. सो वी हैव डिस्कस्ड ऑल द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड. आई थिंक personally that it will be easier for you to remember the reaction if you study the reactions in this way. We have taken a particular organic compound, and from that organic compound we have prepared all the 3 organic compounds in this chapter. So that's all in this session. Thank you. If you like the video, please do share, subscribe it.